One early morning in the garden, I picked a flower. One early morning in the garden, I picked the flower. The gardener suddenly appeared and I panicked. Why worry about a flower when I have given you the entire garden? So द पॉइंट इज कि हम धरती पर आते हैं एंड हम क्या करते हैं ना कि एक चीज के पीछे लग जाते हैं एंड हम उस चीज के पीछे भागते रहते हैं और ये समझते ही नहीं है कि हमारे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। एक ही अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना है। इस तरह से कभी हम जॉब के लिए सफर कर रहे होते हैं, लाइक हमको एक ही फील्ड में जाना है, नहीं। बट द थिंग इज गार्डनर जो बोल रहा है, द गॉड, द यूनिवर्स इफ वी कैन से, तो वो हमें ये कहना चाह रहा है कि प्लीज गो एंड एक्सप्लोर द होल वर्ल्ड। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि तुम एक ही कॉर्नर पे रुके रहो और फिर वहां से आगे भी ना बढ़ो। सो दिस इज द पर्पस ऑफ बडिंग आर्टिस्ट, बडिंग कलाकार ऑल्सो। this name is given that budding kalakar because we want to encourage you the people कि आप लोग आगे आए, अपने talent को सबको दिखाए। So this platform is created for you all by Yolfas and Campus Beat. So budding कलाकार basically एक platform है जहाँ पे कोई भी writer, poet, poetess, storyteller, singers can come forward and showcase their talent. So format, as you know, every Sunday we'll meet at 7. This will be the format. There will be 6 performers. Today also we have 6 performers, and in the end we'll also announce the performer of the week, or we can say star performer of the week. So I would like to introduce you about Yolfas. So I connected a way back. Yolfas से मैं 2016 में जुड़ी थी, जब मेरी राइटिंग की जर्नी शुरू हुई थी 2 साल पहले ही। तब से लेकर आज तक योलफाज मेरे लिए एक बहुत ही दिल के करीब एक प्लेटफॉर्म है। मैं तब से लेकर अब तक जुड़ी हुई हूँ एंड आई एम कंसिस्टेंट इनटू दैट। जितना मैं अपना इनपुट इसमें पुट कर सकती हूँ, आई एम डूइंग दैट। And we have also Krishnakant and Saloni. They are associated with Yolfaz only from a long time. They are writing on our website. So I'm thankful for them that they are here and they are still carrying out their journey with us. So sometimes we कभी कभी ऊपर नीचे चीजें चलती रहती है, but we try कि हम नई चीजें लेकर आए so that we can encourage you people. Starting with the introduction of Campus Beat. So Campus Beat is a youth-driven organization, that is a news organization. ये ऑर्गेनाइजेशन से भी मैं लास्ट ईयर जुड़ी थी। सो इन इंटर्नशिप, सो दे स्प्रेड बेसिकली न्यूज जो कि एक यूथ को जाननी चाहिए। और they also give the internship programs so that every people can connect and they can write, they can express themselves. So it's a very good platform, Campus Beat, I must say. And Swish Verma ji is the founder. He started his journey a way back in 2019 with Campus Beat. We'll go to him at the end of the session. But from अभी के लिए मैं गुरजोत भैया को बुलाना चाहूंगी to introduce about you all first. Gurjot bhaiya. Hello everyone. Can everyone hear me? Yes. Okay. Hey everyone, I am Gurjot Singh, the founder of Yolfast, kind of the creator. और काफी टाइम से एक्चुअली योलफास्ट चल रहा है और कम्युनिटी मेरा साथ दे रही है, इसलिए वो चलाए जा रहा हूँ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। योलफास्ट इज काइंड ऑफ योर पर्सनल डायरी, जो उसका आइडिया था बेसिकली स्टार्ट करने का। एक पर्सनल डायरी आपकी हो जो उसको आप ऑनलाइन भी यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, हर राइटर की एक आदत होती है कि वो अपने साथ एक डायरी रखता है, एक पेन रखता है जिसको जॉट डाउन कर सके अपने, जब भी कुछ थॉट्स आए, कुछ फीलिंग्स उसको शेयर करनी हो, ताकि वो बाद में भूल ना जाए। तो पॉइंट था कि उसको ऑनलाइन लेके जाना। ये काफी टाइम पहले स्टार्ट हुआ था विद वेरियस वेरिएशंस। योलफाज आज के टाइम पे काफी चेंज हो गया और फाइनली आज के टाइम पे हमारे पास बथेरी सारी नई एप्स आ गई हैं फॉर jotting down those points on images and sharing those with videos and whatnot. But still, Yolfaz is going strong, and I hope कि वो और अच्छा जाए. So I'm turning it over to Ritika. उसने ये सारी मेहनत करी, इस पूरे मीट को अरेंज किया, इस लाइव इवेंट को उसकी वजह से मैं कहूँगा पॉसिबल है, प्लस पूरी टीम की वजह से. So thank you, Ritika. Back to you. Thank you so much, भैया. It's like Yolfaz is very close to me, and I just want कि ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है so that कि सबको इसके बारे में पता चले, और जो भी नई चीजें हैं हम उसके साथ अपडेट होकर सबको वो नई नई चीजें प्रोवाइड कर सके.
सो ये वर्कशॉप केवल एक ओपन माइक भी नहीं रहेगा, इसमें वर्कशॉप्स भी होंगे इन सम अदर डे, एवरी संडे दिस विल हैपन। तो हम किसी न किसी संडे को वर्कशॉप्स भी करेंगे जिसमें आप अपने आप को सेल्फ असेस कर सके, लाइक विद समथिंग ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियस राइटिंग, विद सम पेंटिंग्स और सम एक्टिविटीज, तो दैट कि आप अपने आप को और बेहतर जान सके, आप अपने राइटिंग्स को और बेहतर कर सके। तो विल लर्न, इवॉल्व एंड एक्सपैंड। इट्स नॉट लाइक कि हम यहाँ आएंगे और एक दूसरे को सुनकर भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यहाँ पहली बार परफॉर्म करने वाले, आई वुड लाइक टू से प्लीज फील फ्री, आराम से यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू पेपर लेके रिसाइट करना है, सो यू कैन, बट द थिंग इज जस्ट बी विद द फ्लो। जो भी आपका पोइट्री का इमोशन है उसके साथ बने रहे। जब आप उसमें अपना इमोशन डालोगे तो वो इतना सुंदर लगेगा कि आपको खुद को रियलाइज होगा दैट वाओ, इट्स समथिंग एल्स। सो डोंट वरी, फील फ्री, आराम से, इट्स लाइक समझो घर की बात है, इस तरह से। सो वी ऑल आर फैमिली इन अ सेंस, यू कैन टेक इट। सो प्लीज फील फ्री एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ फुल्ली टूडे। कोई जज करने वाला नहीं है आपको यहाँ। सो आई वुड लाइक टू say call Janvi to introduce our performers of the day. Janvi, over to you. Thank you, Ritika Di. So, good evening, one and all. Today's event sequence is every performer is allotted 4 minutes for their performance. You can exceed the time if you want to. Krishnakant, Dhananjay, Sarda, Upali, Saloni, and Ramnivas. Now, I would like to call Gurjot Bhaiya to announce the performer of the week. Oh, wait, Janvi, that is in the end. Please Okay, fine. No, it's call written. the performer. Fine. So looking forward to hear from all you guys. So all the best. First of all, I would like to call Krishnakant Prajapati. He belongs to New Delhi. He started writing in 2013. He's a winner of Writers Unplugged contest, top 3 in Awaz Syahi English contest, Iqrar Alfaz top 10 achievements, winner of Writers Unplugged contest, One Nation, One Emotion, top 3 in Alfaz Syahi English writing contest, top 3 in Iqrar Alfaz Hindi writing contest, published his debut book in April 2021 titled Safar Shabdon Ka. His interest listening to music, teaching, and he is also an active member of You All Fuzz. Welcome, Krishnakant. Looking forward to hear from you. You can unmute Thank you so yourself. much. Yeah, thank you so much for the wonderful welcome, and I am happy to be among you all and looking forward to learning from you all as well. So I guess I should start with my piece today. So अपने लेखन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ 2 लाइनों में। मैं ख्याल लिखता हूँ, मैं सवाल लिखता हूँ। मैं ख्याल लिखता हूँ, मैं सवाल लिखता हूँ, जो दिल में आते हैं बस वही अरमान लिखता हूँ। सो यही है मेरे राइटिंग के बारे में, जो भी दिल में आता है, जो फील करता हूँ वो लिख देता हूँ। सो आज मैं आप लोगों के सामने आई वुड लाइक टू प्रेजेंट अ पीस जो जब मुझे कोविड हुआ था तब मैंने आराम से सोच कर लिखा था, एंड होप यू ऑल विल लाइक इट। सो इसका कोई टाइटल मैंने नहीं दिया। इसका टाइटल एक्चुअली मैं शुरू में नहीं बताने वाला। इसका टाइटल लास्ट की जो लाइन है उसके 4 शब्द हैं। सो हियर वी गो। मेरी नज्म है वो, शायरी भी है वो। मेरी नज्म है वो, शायरी भी है वो। जिसे पढ़ना चाहूँ मैं रोज, मेरी डायरी भी है वो। उठते बैठते सुबह शाम नजरों में मेरी जो रहे। उठते बैठते सुबह शाम नजरों में मेरी जो रहे। मेरे दिल का सुकून, मेरे चेहरे की लाली भी है वो। संभाला उसने मुझे हर मोड़ पे, संभाला उसने मुझे हर मोड़ पे, हर मोड़ को मोड़ दिया बस मेरे लिए। संभाला उसने मुझे हर मोड़ पे, हर मोड़ को मोड़ दिया बस मेरे लिए। सिर्फ साथ ही नहीं दिया जीवन भर मेरा, सिर्फ साथ ही नहीं दिया जीवन भर मेरा। सारी बद्दुआओं को मरोड़ दिया उसने बस मेरे लिए। अमावस की रात को चांदनी किया है उसने, अमावस की रात को चांदनी किया है उसने। उसने इंद्रधनुष सा मेरे जीवन में रंग भी भरा है। अमावस की रात को चांदनी किया है उसने,
उसने इंद्रधनुष सा मेरे जीवन में रंग भी भरा है। जब बुझने लगे चिराग दुनिया के सभी, जब बुझने लगे चिराग दुनिया के सभी, सूरज की तरह उसने उजाला भी मेरे जीवन में करा है। हर एक बात उसकी मुझसे होती है, हर एक बात उसकी मुझसे होती है। वो है मेरा दिन, उसी से मेरी रात होती है। दिवाली और होली का जरिया है वो मेरा, दिवाली और होली का जरिया है वो मेरा। मेरा रोजा भी उसी से मेरी शब बारात होती है। खुदा से इबादत करने में भी वो है, खुदा से इबादत करने में भी वो है। गिले शिकवे शिकायत करने में भी वो है वो जिंदगी के हर एक जर्रे में मेरे, है वो जिंदगी के हर एक जर्रे में मेरे। हर किस्से में वो, हर रिवायत में भी वो है। रोमियो जूलियट लैला मजनू सा प्यार नहीं, रोमियो जूलियट लैला मजनू सा प्यार नहीं, हमारा प्यार तो सबसे अनोखा है। रोमियो जूलियट लैला मजनू सा प्यार नहीं, हमारा प्यार तो सबसे अनोखा है। उसका प्यार ही जिंदा रहेगा हमेशा, बाकी सब तो महज आंखों का एक धोखा है। नसीब में सबके उसकी मोहब्बत नहीं, नसीब में सबके उसकी मोहब्बत नहीं। जिसे मिल जाती मानो शहंशाह है वो, नसीब में सबके उसकी मोहब्बत नहीं। जिसे मिल जाती मानो शहंशाह है वो। पूछोगे नहीं कौन है कहाँ है वो, अरे पूछोगे नहीं कौन है कहाँ है वो। मेरे दिल में है मेरी माँ है वो, मेरे दिल में है मेरी माँ है वो। थैंक यू सो मच। बहुत खूब ब्रदर, बहुत खूब। Wow, Krishnakant, I was just mesmerized. मैं सिर्फ सुन रही थी ऐसे करके. I would love to say, रोमियो जूलियट भी आ गया, रोजा भी आ गया, सब कुछ आ गया. What a start! So next we have Upali Upasna Giri. She is 20. She belonged to Delhi. She started writing when she was in standard 9, around 2016. Earlier, she used to write only love and heartbreak because of a breakup kind of toll a troll on her, and she started using words to express herself. Since then, she has been through a variety of experiences, and her writing has evolved too. Now, she writes about life, her own experiences, and etc. She is not a professional writer. She just uses words to express her feelings. She have never participated in any competition, as she only writes to express herself. She loves singing and have learned it for 7 years. Apart from that, she reading non-fiction and books on psychology. Welcome, Upali. Now you can unmute yourself. Thank you. I hope everybody can hear me. Okay, awesome. So thank you for the introduction, and इतना सुनने के बाद I don't think I stand anywhere right now. So many like big poets are here. तो मैं primarily हिंदी में लिखती हूँ, and तो it's a 2-piece poem. एक वक्त के बारे में तो है, एक है, और एक जिसका मैं आज तक टाइटल डिसाइड नहीं कर पाई हूँ. मैं हमेशा उसका टाइटल चेंज करती रहती हूँ. एंड लास्ट में विथ अ स्मॉल पीस फॉर what I think life is. So I'll start with it. We'll start with time. We'll flow with it, and then we'll talk about everything. So I'll start. कि इसका पहला जो पीस है उसका नाम है वक्त का सफर. So शुरू ऐसे होता है कि वक्त ना जाने कब से है खड़ा, वक्त ना जाने कब से है खड़ा, आदि काल से वो चल रहा, बात उसकी भी निराली है, सिखा दे वो भी जो है अनकहा. सफर का प्रमाण हो या मौत का फरमान हो, सफर का प्रमाण हो या मौत का फरमान हो, काल का आह्वान हो या युग का निर्माण हो, सब वक्त का ही रूप है, सब वक्त से परिपूर्ण है. वो संपूर्ण खुद में तुझे समझाने आया है, वो संपूर्ण है खुद में, वो तुझे समझाने आया है, लड़ना बेकार है, सब उसी की माया है. वक्त ना बोला कभी मैं तेरे विनाश के लिए आया हूँ, वक्त ना बोला कभी मैं तेरे विनाश हेतु आया हूँ, वक्त ना बोला कभी मैं तेरे कल्याण के लिए आया हूँ. चलते चलते हर जमाने को एक ही बात बताई है, आज फुर्सत से बैठ वो बात फिर दोहराई है. कि तू जी रहा अपने कर्म, तू चुन रहा अपने जन्म,
तू जी रहा अपने कर्म, तू चुन रहा अपने जन्म, तू ही है विध्वंस तेरा, तू ही है कैवल्य तेरा। तू थाम हाथ खुद का, तू जी हर बेला, तू सुन जरा खुद की, तू देख जीवन का खेला। वक्त ना रुका है ना रुकेगा तेरे लिए, वो कभी ना थमेगा। तू चला चल तेरी राह पर, देगा साथ तेरा वो हर मोड़ पर। So this is a culmination of my experiences with all the aspects of my life, and it kind of translates me into another version of वक्त कि तेरी आवाज भी मैं हूँ, तेरे अल्फाज भी मैं हूँ, तेरे हर विचार में मैं हूँ, तेरे हर जज्बात में मैं हूँ। तू है हर उस कण में जहाँ मेरी छाप दिखती है, मैं हूँ हर किसी में, वो मेरी ही परछाई है। मैं सोच रहा मगर बोले तू जी रहा पर अनुभव मैं लूं, तू लड़ रहा खुद से ना समझी में, मैं बस तुझे दूर से देखूं। तू ना सोचना कभी तू इस जग में अकेला खड़ा है, तू ना सोचना कभी तू इस जग में अकेला खड़ा है। मैं साथ तेरे तुझ में हूँ, तू मेरा ही एक हिस्सा है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या नाता है मेरा तुझसे, संशय में डाला तुझे हर बार, किया कुछ अलग से। मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, बीते वक्त से मुझे तोल रहे हो। मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, बीते वक्त से मुझे तोल रहे हो। मैं वो भी नहीं मैं वो नहीं जो तुम बना रहे हो, आगामी वक्त का मोल लगा रहे हो। समझ समझ के थक जाओ तो खुद के पास आ जाना, समझ समझ के थक जाओ तो खुद के पास आ जाना। मुझ में तुझ में कोई अंतर नहीं, ये राज खुद ही जान जाना। So थोड़ा heavy हो गया है, but I'll end it with another short piece saying that everything starts from nothing and ends at nothing. कि ये बात आपको शून्य से आ रही है, आपको शून्य बता रहा है कि शून्य से बने हम, शून्य में फिर समाना है। शून्य से बने हम, शून्य में फिर समाना है। शून्यता नहीं करनी है हासिल, उसी अवस्था में जीना है। वो शून्य रंग रूप लेके आया, धरा पर रची एक अद्भुत माया। वो शून्य रंग रूप लेके आया, धरा पर रची एक अद्भुत माया। सच मान अपने अंश को रिझाया, बस ये बताने, बस ये समझाने, तू शून्य है शून्य में मिल जाएगा, तू शून्य है तू शून्य में मिल जाएगा। तू खुलकर जी ले, तू खुलकर जी ले, वरना इस चक्रव्यूह में फंस जाएगा। तो दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, एंड कुछ वर्ड्स के माध्यम से मैं टाइम टू टाइमलेस तक का जर्नी आज यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहती थी, एंड आई होप कि सबको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच। You hope? We loved it. Seriously, we fell in love with your words. We were just, oh my god, I loved it. So, I guess एक समा बांध दिया है आप लोगों ने, अभी शुरुआत ही हुई है वैसे तो। So, let's call Ram Nivas Pandey of Jamshedpur. He started writing he writes some emotional content when he was in class 10th in 2017. He won several prizes at inter and intra school level in treasure hunt, extempore, Olympiads, junk art, and in many other categories. His interest is driving, gymming, drawing, architecture plans, reading, etc. Welcome, Ram Nivas Pandey. Now you can unmute yourself. Thank you for the introduction. I really loved those two contents presented by them. The title of my poem is Unkai Jazbaat. I wrote this. I hope I'm audible. I wrote this in this February. I actually fell in love with my best friend, but I always feared if I say my feelings, she will definitely go away. And at last, this March, actually, she went without giving any reasons, and I lost my best friend. And so, this is for her, actually.
So, can I start? अनकहे जज्बात, कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे जिस्मों की नहीं रूह की मोहब्बत चाहिए, हजारों से नहीं बस मुझे एक तुमसे सुकून चाहिए। कैसे बताऊं कि न जाने कितने जंग लड़ता हूं खुद से, बस एक तुझे पाने के लिए। कुछ महीनों का नहीं जन्मों का प्यार चाहिए मुझे जिंदा रहने के लिए। बड़े अजीब है ये हालात मेरे, ना कुछ कह सकता और ना चुप रहने देते ये अरमान मेरे। समंदर तो काफी छोटी जगह है, मुझे तो तेरे बस दो नैन चाहिए डूबने के लिए। शब्दों में बयां नहीं हो सकता ये मोहब्बत है ही ऐसी। कुछ पल तेरे होने से चैन है रहता, और ये तेरे बिना मुझ में बेचैनी कैसे। बड़ा कठिन है तुझको अपना हाल बताना, नामुमकिन सा है एक करना अफसाना हमारा। मुझे मालूम है कि हमारी कोई मंजिल नहीं, पर परवाह नहीं, ये मंजिल से ज्यादा हमारा सफर है सुहाना। समानांतर रेखाएं कभी मिल नहीं सकती, मगर इसकी खूबसूरती ये है कि अनंत तक जाएंगी पर कभी थक नहीं सकती। रास्तों पे चल पड़ा मैं, ये घबराहट क्या ऊंची शिखर की। जब साथ है तू मेरे इस मंजिल में, तो बात क्या है फिक्र की। आज समझ आया कि दर्द क्या झेला था राधा कृष्ण ने। यूं ही नहीं अमर है इश्क उनका आज भी सारे जमाने में। मैं वो मोहब्बत कर नहीं सकता क्योंकि मुझे पता है मैं टूट जाऊंगा। बता नहीं सकता तुझे इसलिए ये सारी बातों को सीने में दबाए जन्नत की ओर निकल जाऊंगा। तुझे यूं मैं दुख के समंदर में नहीं डाल सकता, साथ नहीं रह सकता तेरे मैं, पर तुझे बांट भी नहीं सकता। जिस्मों से प्यार करना आया नहीं मुझे, इसीलिए मेरी रूह चिल्लाती है। इस चीखते रूह को शांत कर दे, बस यही प्रार्थना मेरी है। अब तो सांसों से ज्यादा तुम जरूरत हो मेरी, करकराते रात में गर्म चाय सी एहसास हो तुम मेरी। थक गया हूँ यूं छुपाकर जज्बात सारे अंदर, मेरे लिए अब तुम खुदा हो और खुदा में तुम ज्यादा नहीं अंदर। एक दिन अपने दिल की बात सुना दूंगा, पर क्या तुम समझ पाओगी। अभी साथ रहने का वादा किया है, सब कुछ सुनने के बाद भी क्या तुम वादा निभा पाओगी। अब रुकता हूँ और ठंड में कुछ ख्वाब को जलाकर आराम लेता हूँ। तेरी यादों का तकिया बना साथ तेरे एहसास लेकर, मैं अंधेरी रात में खामोशी में गुम हो जाता हूँ। थैंक यू। Janvi, unmute yourself. Wow, that was such a beautiful piece. Now, I would love to call Sada Prasanna Bose from Karadi. Started writing in 2015. Also a state champion in debate, state champion in poetry writing, national champion in YRC locution. Other interests and hobbies include singing, stand-up comedy, acting, fine arts, and teaching. Now, you can unmute yourself. क्या हमारी आवाज आ रही है? Hello. Yes. Thank you. I'm from Odisha and I write poetries in Odia language. आज मैं पोएट्री नहीं सुनाऊंगा. Actually, I'm gonna tell a story. मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ. हमारा जो जीवन है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है. ये एक किताब है. हम खुद पोएट्रीज लिखते हैं और पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं. लेकिन एक ऐसी भी पुस्तक है जिसको हमें रोज पढ़ना पड़ता है और उसका नाम जीवन है. और उस जीवन को समझने के लिए, उस शिक्षा को देने के लिए हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कहानियां बनाई थी, जिसको वेद और उपनिषद के माध्यम से हमें उन्होंने सौंपा. तो उसी में से एक बहुत ही खूबसूरत कहानी मैं बताने वाला हूं. एक बार एक शिष्य आश्रम से बाहर निकला, जो 24 साल तक कभी बाहर नहीं निकला आश्रम से. 26 साल के बाद अपने
गृहस्थ जीवन को बिताने के लिए जब वो बाहर निकला, उसने देखा दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ पे हर कोई अलग है। कोई हमारे पीठ पीछे कुछ भी बात कर लेता है, कोई हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानता लेकिन हमें गलत समझ बैठता है, कोई कुछ भी बोलता है। शिष्य को बड़ा गुस्सा आया। वो दोबारा फौरन लौट के गुरु के पास गया और पूछा, गुरुजी, मैं ऐसी दुनिया में कैसे रह सकता हूँ? यहाँ सब लोग अजीब हैं, सब अलग हैं, पता नहीं क्या करते हैं। किसी को मेरे बारे में पता ही नहीं है, ना किसी को मेरे ज्ञान के बारे में पता है, ना आपकी सिद्धियों के बारे में पता है, कुछ भी बोलते हैं। यहाँ पे जीना कैसे है? तो गुरुजी ने कहा, बोल रहे हैं वो करो। एक पत्थर दे रहे हैं तुम्हें, इसको लेके जाओ। हर किसी को पूछना कि इसका भाव क्या है, इसका मोल क्या है, लेकिन कभी बेचना मत। जब तुम्हें लगे कि इस पत्थर का भाव इतना ही होना चाहिए तो तुम वापस आ जाना हमारे पास। ये कहकर गुरुजी ने शिष्य को एक पत्थर दिया। शिष्य ने उस पत्थर को लेकर जब रास्ते पे चलना शुरू किया तो एक बाजार था। बाजार की ओर से गुजरते हुए एक सब्जी वाले की आंखें उस चमकदार पत्थर पर पड़े। उसने बोला, अरे बेटा सुनो, वह पत्थर मुझे दे दो, बड़ा चमकीला है, बच्चों के खेलने के लिए बड़ा काम आएगा, ये पत्थर दे दो मुझे। अब इसके बदले में 2 किलो या 1 किलो आलू या बैंगन ले लो। शिष्य ने कहा, बेचना मना है। थोड़ी देर आगे गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एक और दूध वाला मिला। उसने बोला, 3-4 गिलास दूध ले लो और मुझे पत्थर दे दो। दूध की हंडी ढकने में कपड़े के ऊपर ये पत्थर बड़ा अच्छा लगेगा। बड़ा खूबसूरत है, दे दो बेटा। तो शिष्य ने कहा, नहीं, बेचने की इजाजत नहीं है। शिष्य आगे बढ़ता गया। एक बड़े व्यापारी ने देखा। उसने बुलाया, अरे बेटा सुनो, ये जो पत्थर है ये हमें दे सकते हो क्या? हमें चाहिए, अब 50,000 ले लियो, ये दे दो। अब शिष्य ने बड़े प्यार से कहा, नहीं, बेचना मना है। थोड़ी देर आगे गया। अब कुछ आगे जाकर वो जब बाजार से निकला तो उसको एक हीरे की दुकान मिली। छोटे से हीरे की दुकान। दुकानदार ने कहा, क्यों बेटा, हाथ में पत्थर लिए घूम रहे हो? पत्थर यहाँ लेके आओ, हम भी थोड़ा कस के देख लेंगे है क्या। अब बड़ी परख के बाद व्यापारी ने कहा, कम से कम 1 लाख या ज्यादा से ज्यादा 2 लाख। चलो अब दो, अब इसको देना ही पड़ेगा। तो शिष्य ने कहा, नहीं, हमें ये बेचना मना है। वो आगे गया। अब थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एक बड़े हीरे व्यापारी मिले। हाथ में पत्थर देखते ही उन्होंने बोला, अरे बेटा यहाँ आओ, यहाँ आओ, हमसे परिचय कराओ अपना, बड़ा हीरा लेके घूम रहे हो। उन्होंने भी बहुत छानबीन की। फिर बोला, अब 20 लाख से 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे भैया, इतने में ही दे दो। शिष्य ने कहा, खुशी हुई आपकी बात सुनकर, लेकिन मुझे ये बेचने की इजाजत नहीं है। तो व्यापारी को गुस्सा आ गया। उसने बोला, क्या बात करते हो भाई, अब तुम्हें 20 लाख बोले उसके बावजूद मना कर रहे हो। उस वक्त उसी ओर से राज पुरोहित गुजर रहे थे, जो राजगुरु थे। तो व्यापारी ने कहा, चलो इस पत्थर को लेकर राजगुरु से पूछते हैं, क्या 20 लाख इसके लिए सही नहीं है? अब जब राजगुरु से पूछा गया तो राजगुरु बोले, बिना विद्वानों को दिखाए मैं ये बता नहीं सकता, चलो राजा के पास चलते हैं। अब राज दरबार में सब गए। अब जाने के बाद जब विद्वानों ने उसका परीक्षण किया तो घंटों के परीक्षण के बाद उन्होंने बोला, महाराज, राजकोष में जितने सोने हैं और साथ में कुछ हीरे आप इस लड़के को दे दीजिए इस पत्थर के बदले। उस वक्त उस लड़के ने बस इतना कहा, मुझे ये बेचना मना है। इस बात पे राजा नाराज हो गए। उन्होंने कहा, राजकोष की सारी सोनाएं दे रहे हैं, पूरी की पूरी, और कुछ हीरे भी दे रहे हैं, उसके बावजूद नहीं बेच रहे हो। शिष्य ने बड़े प्यार से कहा, महाराज, मेरा तो बहुत मन है बेचने का, लेकिन गुरुजी ने मना किया है। तो राजा बोले, आपके गुरुजी से हम मिलना चाहते हैं, जल्दी चलिए। शिष्य डरा नहीं, क्योंकि वो संत था।
और सब मिलकर गुरुजी के पास गए। और जब गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने बोला, क्या हुआ, बड़े संतुष्ट दिखाई दे रहे हो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, अगर आपने मना नहीं किया होता तो आज हम अमीर होते। और पता है, आश्रम में अब कभी भी किसी शिष्य को भीख नहीं मांगना पड़ता। फिर गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है, पहले मैं ये बता दूं कि ये पत्थर है क्या। राजा के साथ खड़े सिपाही से गुरुजी ने बस इतना कहा, क्या ये तलवार लोहे का है? तो सैनिक ने बोला, हाँ। गुरुजी ने बोला, मुझे दो। जब तलवार गुरुजी को दे दी गई, उन्होंने उस तलवार से उस पत्थर का स्पर्श करवाया और वो तलवार सोने का बन गया। राजा, शिष्य सब चकित रह गए। फिर गुरुजी ने कहा, महाराज के राजकोष में उतना सोना नहीं है जितना सोना हम जीवन भर में बना सकते हैं, सिर्फ लोहे को इस पत्थर से स्पर्श करवाकर। क्या इसके बावजूद तुम कहना चाहोगे कि वो इसके लिए सही मूल्य था, सही दाम था? शिष्य रोने लगा। शिष्य ने पूछा, कि आखिर ये है क्या? तो गुरुजी ने कहा, ये परसमणि है बेटा, इसके स्पर्श से धातु लोहे जैसा धातु सोने का बन जाता है। तो शिष्य ने कहा, आपके पास ये होते हुए भी आपने कभी हमें बताया नहीं, ना सोना बना के दिया बल्कि हमसे भीख मंगवाए। गुरुजी ने कहा, ये परसमणि जो है ये विद्या है बेटा, जो लोगों को अच्छा बनाता है, लोहे से सोना बनाता है। ये दुरुपयोग के लिए नहीं है, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं इसलिए तुम्हें ये दिया क्योंकि जब तुम बाहर गए, तुम्हें सब्जी वाले ने इसका दाम कितना बताया और महाराज के विद्वानों ने कितना बताया। इससे ये तय होता है कि हमारे बारे में कोई जो भी सोचता है ये उसके ज्ञान के आधारित होता है। जितना उसको पता है, जितने का उसका सर है, जितना उसका ज्ञान है, वो उसके हिसाब से हमारा भाव तोल करता है। इसलिए हमें कभी भी दूसरों की बातों को, जो भी वो हमारे बारे में बोलते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आया? यही है जीवन का पाठ। और जो हमारे पास ज्ञान है वो परसमणि जैसा है, उससे हमें दूसरों को अच्छा बनाना चाहिए, ना कि पैसा कमाने के पीछे दौड़ना चाहिए। यही वो जीवन का ज्ञान है। अब जाओ, खुशी से बचो, खुशी से रहो, किसी से किसी भी तरह का मतलब ना रखो। सीताराम, प्रणाम, थैंक यू। वाओ, काफी गहरी बात कही आपने। स्टोरी तो अच्छी थी ही, नो डाउट, बट आपके एक्सप्रेशंस वर लाइक चेरी ऑन द केक। यू वर टू गुड विद दैट। ओके, अगर सब बोल ही रहे हैं तो मुझे भी निदा पासवान जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, तो मुझे भी बोलना है कुछ। तो सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चल लो। सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो निकल लो। उधर उधर कहीं मंजिलें हैं, इधर उधर तो कहीं मंजिलें हैं, तुम चल सको तो चल लो ना। बने बनाए हैं साँचे, बने बनाए हैं साँचे, जो ढल सको तो चल लो। किसी के वास्ते रहे, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चल लो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता है, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता है। मुझे गिरा के तुम संभल सको तो संभल लो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो बहल लो ना। हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश, हर सफर को है कुछ महफूज रास्तों की तलाश। हिफाजतों की रिवायत बदल सको तो बदल लो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, कहीं नहीं है कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो निकल लो। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी धनंजय सिंह, जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं। स्टार्टेड राइटिंग इन सिंस 2019. His hobbies are writing, playing music instrument, cooking and traveling. He participated in Kavya Pathak held by Vitika. He have participated in open mic competition, and he have Instagram account @Ru_.
row.19. So I would love to call Dhananjay. Now you can unmute yourself. Am I audible? Good luck. Hello, am I audible? Yes. Thank you. First of all, good evening, everyone. Thank you for giving me a great opportunity to present ourselves. My name is Dhananjay Singh. I am from Jaipur. I study in Jaipur National University. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो नर्वस कि अभी इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है और इतने अच्छे अच्छे राइटर्स यहाँ पर इतने अच्छी अच्छी पोइट्रीज बोल रहे हैं, स्टोरी टेलिंग हो रही है, बट आई एम जस्ट अ बिगनर. सो कुछ गलती हो तो प्लीज सॉरी. आई एम मैं आगे आप सभी से मैं आज्ञा चाहता हूँ कि मैं मेरी कविता एक लड़की के ऊपर क्या क्या बीतती है, एक लड़की क्या क्या सहती है, उस पे है. एक लड़की क्या नहीं बोलती है, एक लड़की क्या चुप रहती है, ये कविता उस पे है. तो मैं आप सभी से आगे चाहता हूँ कि मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूँ. थैंक यू. मुश्किल था मुस्कुराना उसके लिए, मुश्किल था मुस्कुराना उसके लिए, उसकी जिंदगी की मुस्कुराहट नजर आती थी. सब बदल गया था अब उसकी जिंदगी में, मगर उसकी रातें उसे अभी भी सताती थी. थक चुकी थी वो अपनी बेफिक्री के मकौटे से, उसकी सच्चाई उसके सामने आ ही जाती थी. फिक्र थी बहुत सी, किसी के खो जाने का डर तो किसी के लौट आने का डर, मगर वो हर बार खामोशी से हर बात छुपा लेती थी. चाहती थी भरोसा करना मगर अब वो थक चुकी थी. सहारे की जरूरत थी उसे, मगर दूसरों को देख सहारा खुद बन जाती थी. एक लड़की है जो लड़ सकती है पूरी दुनिया से, मगर लेकिन अपने ही जज्बातों से हार जाती है. एक लड़की है जो लड़ सकती है मगर लेकिन अपने ही जज्बातों से हार जाती है. सो थैंक यू. Wow, Dhananjay. Now we have a last performer, Saloni. She belongs to MP. She started writing 4 years ago and she is co-author in 4+ anthologies. She loves coding and trekking. She is also an active prime member of UL Files. Welcome, Saloni. You can unmute yourself and here you go. Hello all, am I audible? First of all, I would like to thank you Alfaz and Ritika for providing us such a beautiful platform to express our feelings. Hi, I am Saloni. Professionally, I am software engineer, but passionately मैं लिखना पसंद करती हूँ. मुझे बहुत पसंद है चीज़ों को एक्सप्लोर करना और उसके बारे में समझना और फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखना. तो आज मैं 2 पंक्तियां शुरू करना चाहूंगी. जैसे हमारे यहाँ हर इंसान होता है जिसको एक न एक बार तो प्यार जरूर होता है. तो मैंने 2-3 लाइन्स में उसको लिखा है. तो कोई इंसान इतना समझदार नहीं हुआ कि वो कभी प्रेम में ना पड़ा हो. कोई इंसान इतना समझदार नहीं हुआ कि वो कभी प्रेम में ना पड़ा हो. नादानियां खुद को दोहराती रहती है. यहाँ मैंने जो अपनी पोयम लिखी है वो इस वे में लिखी हुई है कि एक लड़का है, वो अपनी माशूका से हमेशा पूछता रहता है कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, लेकिन वो ना हमेशा उसके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपनी फीलिंग्स. तो उसने अब इस वे में उसको एक्सप्रेस किया है. बड़ा भोला सा है वो, थोड़ा कम बोलता है, मगर मेरी सारी बकवास मुंह बंद करके चुपचाप सुनता है. थोड़ी आदतें मम्मी वाली भी है उसमें, मेरे बारे में वो मुझसे ज्यादा सोचता है. मैं कैसे बताऊं सबको उसकी आदतों का सबब, मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती है. मुझसे लड़ना, झगड़ना और फिर प्यार से मुझे गले लगाकर मुझे समझाना. मेरे मामूली से नाम का उसका कुछ यूं पुकारना, गुम हो जाना. हाँ मैं मानती हूँ मुझे कुछ जताना नहीं आता. और कैसे बयां करूं उसकी तारीफें मुझे बेबाक सी कुछ बातें मुझे प्यारी सी लगती है. मेरी गलतियों पर तुम ऐसे ही तो अच्छी हो.
तुम ऐसी ही तो अच्छी हो कहकर मुझे झल्ली बुलाता है, और तुम जो पूछते हो ना मुझसे हर बार ये सवाल कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, तो सुनो, मैं अभी भी यही कहूंगी, मुझे बताते नहीं आता। और यहाँ मैं 2 लाइन बोलकर खत्म करना चाहूंगी। मैं उससे मिलकर ठीक वैसे ही लौटती हूँ जैसे कोई नन्ही सी चिड़िया धरती से आसमान को छूकर लौटती है, थैंक यू। Wow, that was a beautiful piece of poetry. We all enjoyed that. Now with this, now it's time to call Gurjot Bhaiya to announce the performer of. Janvi, Fine, just okay. wait. Yeah. So, beginning from the starting, Krishnakant, Meri Ma, your poem was so nice, very well penned. So, like, literally बहुत प्यारे आपके words थे and आपने बहुत अच्छे से उसको frame करा। आगे पाली की बात करूँ तो वक्त से शून्य तक पहले तो शी इज वेरी नर्वस काइंड ऑफ गर्ल, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि मैं सही नहीं कर प्रेजेंट कर पाऊंगी, बट उसको पता नहीं है कि शी कैन प्रेजेंट वेरी वेल। आई वुड आल्सो लाइक टू टेल कि शी इज अ experienced meditator, she is a pyramid master, so we are also connected to that thing, meditation. So moving forward, राम निवास, मतलब यार मैंने तो पहली बार सुना है आपको, एंड यू आर ऑल्सो वेरी नाइस। बेस्ट फ्रेंड का प्यार, ओके, ये कंडीशन सबके जीवन में एक बार आई जाती है कि यार बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो गया है, अब उसको बताना है, और अब उसमें चांसेस भी नहीं है कि वो रहेगी या नहीं रहेगी, बट स्टिल हाँ ठीक है, हमको कह देना चाहिए, उसे दबा के नहीं रखना चाहिए, पता चले बाद में ये भी चांस हो जाए कि क्या पता हाँ बोल दे तो चांस तो मत लीजिए, बोल दीजिए, होगा जो देखी जाएगी। सो कोई ना राम निवास, कोई और आएगी। शारदा, मतलब यार आपने स्टोरी इतना प्यारा तरीके से प्रेजेंट करी ना, रियली लव्ड इट। बहुत खूबसूरती से आपने जीवन के बारे में बताया, मतलब कोई तोल नहीं लगा सकता उसका, बहुत खूबसूरती से आपने बयां किया है। और लास्ट हमारा परफॉर्मर धनंजय, जो कि रिसेंटली ऑल फास्ट से जुड़े हैं। सो ब्यूटीफुल स्टार्ट विद अ गर्ल स्टोरी की हाउ शी फील्स, उसके एहसास और जज्बात बहुत खूबसूरती से आपने बयां किया है। सलोनी दी, आपने बहुत ही मस्त बोला, मतलब वी लव्ड इट। मतलब सच में ऐसी कंडीशंस में कोई ना एक दफा होता है कि एक इंसान बेचारा एक्सट्रोवर्ट रह जाता है, एक इंट्रोवर्ट रह जाता है, तो वो उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, मतलब उसको सामने वाले को मिन्नत ही करता है कि भाई एक्सप्रेस कर तो सही, बट यार समटाइम्स साइलेंस भी बहुत कुछ कह जाती है, तो वो भी बात है। तो मीनवाइल सुरेश भैया, आर यू देयर? Hi, Rika. Yes. Wait, let me introduce सुरेश भैया। ही इज अ राइटर, रिसेंटली इन्होंने अपना एक बुक भी लिखा है, एंड इन्होंने अपनी जर्नी अपने कॉलेज से शुरू की थी। बेसिकली इनके जो यहाँ आने तक की जर्नी मैं आपको बताना चाहूंगी, कॉलेज में ही इन्होंने सोचा कि अब मुझे कुछ बड़ा करना है, तो ही स्टार्टेड वेकअप इंडिया फाउंडेशन, एंड वो अभी वेकअप इंडिया फाउंडेशन 4 स्टेट्स में है, एंड ही कोलैब्ड विद मेनी अदर कॉलेजेस आल्सो। एंड उसके बाद 2019 में ही इन्होंने कैंपस बीट का आइडिया लेकर आए, एंड ही फाउंडेड कैंपस बीट। इट्स अ स्टूडेंट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, मतलब he is open to change, he is open to explore, and he writes so good about social things. If you want to read, you can read by his name. So now over to you. Thank you, Ritika. Thank you, everyone. मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? ओके, परफेक्ट। तो सबसे पहली जो चीज मैं कहना चाहूंगा कि धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने इस मंच की शोभा बढ़ा दी, मैं यही कहना चाहूंगा। जो पहला अगर मैं इसे एपिसोड कह सकता हूँ, पहला एपिसोड जो हमारा बडिंग कलाकार का हुआ, आप सभी पार्टिसिपेंट्स ने इस मंच की एक शोभा बढ़ा दी। इतने अच्छे तरीके से हमने सीखा और देखा, बहुत अच्छे कलाकारों को इस मंच पे देखा।
तो अगर मैं कृष्णकांत जी की बात करूं या पाली की बात करूं या मैं स्टोरी टेलिंग हुई, पोइट्री हुई, ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया हम सभी को आप लोगों से कनेक्ट करने का। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाना चाहूंगा अपने अपने सफर की। मैंने पोइट्री कब शुरुआत की और किस तरीके से मैं उभर रहा हूँ और किस तरीके से मैं सीख रहा हूँ इस पूरी विधा को, और ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहूंगा आप सभी का। तो मैंने शायद क्लास 8 या 9 के आसपास मैंने हिंदी कविता लिखनी शुरुआत की थी। मैं मोस्टली आई राइट इन हिंदी। सो उस वक्त मैंने शुरुआत की और उस वक्त जो हिंदी थी वो काफी क्लिष्ट हुआ करती थी। तो मैंने शुरुआत की थी भूषण की कविताओं से या फिर राष्ट्रकवि दिनकर हैं उनकी कविताओं से। राष्ट्रकवि दिनकर मुझे लगता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखें तो जो वीर रस के कुछ ही कवि हैं जिनकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, दिनकर उनमें से एक है। भूषण की कविताओं में अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार जो नए हैं मैं उनको ये अलिट्रेशन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो basically when you repeat a word or a theme or a character throughout the poetry, so suppose a word starts with an A, the entire poetry starts with an A, तो वो अनुप्रास अलंकार है। तो अगर आप भूषण को पढ़ेंगे तो आपको अनुप्रास अलंकार का काफी उपयोग दिख जाएगा। जैसे उन्होंने लिखा था जो महाराजा छत्रसाल थे उनकी उनकी शौर्य गाथा में उन्होंने लिखा था कि लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कैसे रे बखान करूं तेरी कलवार को, प्रतिभट कटक कटिल केटे काटी काटी, काली कासी तिल की कलेऊ देती काल को। तो ये आप देखिए कि कितने अच्छे से अनुप्रास अलंकार का उन्होंने उपयोग किया है। और फिर अगर आप दिनकर पे पढ़ें तो उनकी कविताओं में एक जो स्थायी भाव है, जो उत्साह का भाव है, जो एनर्जी उनकी कविताओं को पढ़ने से आती है, वो काफी अच्छे तरीके से आपको दिख जाएगी। जैसे उन्होंने कहा था कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश प्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। या फिर उन्होंने जब कहा कि बरखर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो इस प्रकार की जो कविताएं हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो उनमें मेरा बचपन गुजरा। उनमें इन कविताओं को देख के मैंने कुछ कविताएं लिखनी शुरू की। पर अगर आज के दौर में हम आए तो आज के दौर में हिंदी बिल्कुल बदल गई है। हिंदी और उर्दू और या फिर इंग्लिश भी आप देख लें तो जो क्लिष्ट शब्द हैं उनका उपयोग करके हम लोग अब बड़े ख्यालों को नहीं पोर्ट्रे करते हैं। अब बोलचाल की भाषा का उपयोग किया जा सकता है। आपने आज की पोइट्री सुनी, इतनी अच्छी पोइट्री और इतनी अच्छी कविताएं प्रस्तुत की गई। तो आज हमने देखा कि जो बोलचाल की भाषा है, जो हम आम दिनों में उपयोग करते हैं, उनका उपयोग करके इतने बड़े बड़े ख्यालों, इतने बड़े बड़े विचारों को रखा गया और ये काफी अच्छी चीज है। नई वाली हिंदी के प्रणेता हैं कुछ लोग। अगर आप हिंदी उपन्यास पढ़ते हैं तो आप देखेंगे दिव्य प्रकाश दुबे जी हैं, सत्यव्यास जी हैं, निखिल सचान जी हैं या नीलोत्पल मृणाल जी। तो एक जमाना था कि कभी ऐसी सोच नहीं हो सकती थी कि हिंदी की कोई पुस्तक 1 लाख कॉपी से ज्यादा बिकेगी। अगर हिंदी के उपन्यासकारों की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी के उपन्यासकार में हमें प्रेमचंद्र नाम दिखता है या फिर महादेवी वर्मा का नाम दिखता है, जो कि जो 21st सेंचुरी है उसके लेखक नहीं है। 21st सेंचुरी में कुछ चुनिंदा लेखक हैं जो नई हिंदी का उपयोग करके 1 लाख कॉपी से ज्यादा अपनी नॉवेल्स और अपनी पुस्तक सेल कर चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और शायद आज के जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए फिर यही कहना चाहूंगा कि वो वसीम बरेलवी साहब की जो कविता एक शेर है कि जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता। तो आज के लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से एप्ट है, ये अगर मैं कहना चाहूँ, क्योंकि हमने एक इवोल्यूशन देखा है शब्दों का, हमने भावनाओं का एक इवोल्यूशन देखा है। और जैसा कि रितिका ने शुरुआत में कहा था कि आप अपने शब्दों को, आप अपने भावों को रोके नहीं, आप अपने जो भी आपके इमोशंस हैं उनको रोके नहीं, उनको वर्ड्स के कारण और उनको इस थॉट से कि आपको कोई जज करे इस प्लेटफॉर्म पे कभी रोके नहीं। कोशिश करते रहें, सीखते रहें, सीखना जरूरी है। और
लिखने से ज्यादा जरूरी पढ़ें, लोगों को पढ़ें और लोगों के बारे में पढ़ें। कवि को पढ़ना, कवि की रचना पढ़ना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कवि के जिंदगी के बारे में पढ़ना, क्योंकि वो काफी महत्वपूर्ण होता है, उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है हमें। जैसा कि रितिका ने बताया कि मैंने एक पुस्तक लिखी है, अभी एक कोशिश की है, छोटी सी कोशिश, और आप सबों का सहयोग और मार्गदर्शन की आवश्यकता भी है। आप लोग उसे पढ़ें। अमेजन का लिंक अभी अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल होगा तो मैं यूल्फाज या इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सोशल मीडिया पे मैं थोड़ा नया हूं, तो आप लोगों को आप लोग वहां पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और वहां पे भी लिंक अवेलेबल हो जाएगी, आप उसके थ्रू भी उस बुक को देख सकते हैं। एक छोटा सा अंश पेश करना चाहूंगा जो उस कविता का है। ये दिनकर के वीर रस से प्रभावित है, और ये उस वक्त की दास्तां है जब हर हर इंसान के जीवन में एक वक्त आता है जब उसे खुद पे वो जो कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डोल रहा होता है। उसे लगता है कि मैंने ये सही किया, ये गलत किया, क्या डिसीजन मैंने लिया है, वो आगे क्या होगा, मेरी करियर किस डायरेक्शन में जाएगी। तो इन सब चीजों के बीच में मैंने एक कविता लिखी थी अपनी जर्नी पे। मैं ट्रैवल कर रहा था दिल्ली में, तो ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं पूरी कविता नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। तो ये मैंने लिखा है कि धन कीर्ति यश प्रताप से नहीं महान हूँ, धन कीर्ति यश प्रताप से नहीं महान हूँ, आंधियों की हुंकार सा मैं विजयी शौर्यगान हूँ। हर व्यक्ति विशेष में मैं भागवत का दान हूँ हर व्यक्ति विशेष में मैं भागवत का दान हूँ, गंगा की शुद्ध धार और मैं लहर कहर समान हूँ, आंधियों की हुंकार सा मैं विजयी शौर्यगान हूँ महादेव का तेज में हूँ महादेव का तेज में और प्रकाश का प्रमाण हूँ, बुद्ध का अखंड ज्ञान और कर्ण का अभिमान हूँ, आंधियों की हुंकार सा मैं विजयी शौर्यगान हूँ, आंधियों की हुंकार सा मैं विजयी शौर्यगान हूँ। तो ये एक कविता है उस पुस्तक से जो मैंने लिखी है। और इस प्रकार के मंच का आयोजन होते रहना चाहिए। हम आप लोग से मिलते हैं और आप लोगों के साथ मिलकर काफी कुछ सीखने को मिलता है, काफी कुछ जानने को मिलता है। तो ये एक ओवरऑल बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था, बहुत चीजें सीखने को मिली, बहुत चीजें समझने को मिली। कुछ लोगों ने तो इतनी अच्छी ऐसी बातें कह दी कि वो बिल्कुल दिल को छू गई, जैसे जब उपाली ने कहा कि शून्य से बने हैं और शून्य में फिर समाना है, या फिर जब कृष्णकांत जी ने कहा कि हर एक बात मुझसे होती है, वो है मेरा दिन और मेरी रात होती है। और ये शब्द कितने अच्छे तरीके से अपनी माँ के लिए लिखे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है और ये बहुत ही नई प्रकार की विधा है जो हम लोग इस ओर प्रगति कर रहे हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने काफी अच्छी प्रस्तुति दी। अगले संडे फिर हम लोग मिलते रहेंगे, अक्सर मिलेंगे और नई नई चीजों को सीखेंगे और नई नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू रितिका, ओवर टू यू। Who will be announcing star performer? आई विल बी डूइंग, या ओके। तो ये एक बहुत ही I think the toughest moment of this entire session, I have to announce the star performer of the week. और अनाउंस करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि दिस इज नॉट कंपटीशन, ये द्वंद्व नहीं है। कुछ चीजें ये प्रेजेंटेशन और कंटेंट पे हम लोगों ने डिसाइड किया है। और स्टार परफॉर्मर ऑफ द वीक ऑब्वियसली हर वीक हम लोग एक नया अनाउंस करेंगे। फॉर दिस वीक आई थिंक जिनका प्रेजेंटेशन मुझे काफी अच्छा लगा, जिनके शब्दों का चयन मुझे काफी अच्छा लगा, और मैं चैट पढ़ रहा था, सभी ने करीबन ऐसा कहा कि जो शब्द थे वो काफी अच्छे थे उनके, और जो भावनाएं उन्होंने कन्वे की वो काफी अच्छी थी। तो आज इस सेशन के जो स्टार परफॉर्मर ऑफ द वीक हैं वो हैं उपाली। कॉन्ग्रेचुलेशंस उपाली, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी थी। जैसा रितिका ने कहा, आप शुरू में थोड़े नर्वस थे, बट आपने जब शुरुआत की, आपने जो शब्दों का चयन किया और आपने जिस तरीके से वक्त की बात की, आपने जिस तरीके से उस शून्य पे जाने की बात की, वो काफी अच्छा था। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपको जो फीलिंग्स, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो फीलिंग्स अंदर है उनको अगर सही शब्द मिल जाए तो उससे ज्यादा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू रितिका कि आपने इनवाइट किया इसके लिए। Thank you so much and congratulations, Upali.
It was wonderful. Actually, आप सभी की poetries was very wonderful. हमने सभी की कविता से कुछ ना कुछ सीखा है. मतलब मुझे सच में नहीं पता था कि इतना खूबसूरत एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो सकता है, बट आप सबके वजह से बहुत ही खूबसूरती से इसका फ्लो रहा. एंड थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को. एंड आई वुड लाइक टू आगे की डिटेल्स मैं आपको बताना चाहूंगी दैट every Monday to Thursday, Google Form will be rolled out. Because it was for first time, तो हमने आपको directly select किया था. For the next time, if you want to suggest someone, तो we'll be launching the Google Form on the bio on the website also. वहाँ से आप उनको बोल सकते हैं कि आप Google Form भरिए, उसमें कुछ basic details होंगे, उसके basis पे we'll be selecting them for the next Sunday. Every Sunday will be there will be 6 performers. So its format will be like that 1 month में 4 बार संडे आएंगे, तो 2 टाइम will be open mic and 2 टाइम will be the workshop. So workshop में आप लोगों को भी आना है, because हम उसमें मोर फोकस करेंगे आपकी राइटिंग स्किल्स पर, आपका सेल्फ असेसमेंट पर, कि और आप उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं. तो आज का सेशन वैसे तो प्लान आउट 45 मिनट्स का होता, बट ड्यू टू सम अप्स एंड डाउन्स इट गोज टू 1 hour. बट थैंक यू सो मच. आप सबका इतना खूबसूरत प्रदर्शन रहा. आई रियली लव्ड इट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड द सेशन इज रिकॉर्डेड. अगर आप किसी को भी रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. आई वुड गिव द लिंक ऑफ द डे. ग्रेट. तो जिसको भी चाहिए हो प्लीज फील फ्री, रीच आउट टू मी एंड गिव द लिंक. Okay, thank you everyone. Yeah. See you. Bye. Good night. Bye, guys. Nice to meet you all. Bye, good night. Bye everyone. पढ़ाई नहीं हो रही है, मीटिंग चल रही है, जब पोएट्री वगैरह सुना रहे हैं सबके सब.